Hello children, today we are going to study determiners. Determiners आज हम पढ़ने जा रहे हैं determiners और types of determiners. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि determiners की definition क्या होती है. Determiners are words placed in front of a noun to make clear what the noun refers to. मतलब ये determiners को हम noun के पहले प्लेस करते हैं और ये बताने के लिए कि वह नाउन किस तरह का है. अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको डिटर्मिनर्स के दे रही हूँ, जैसे द, एन, दिस, वन, माई, योर, अ लिटिल, विच, अदर, दोज, मोस्ट. ये सब डिटर्मिनर्स हैं अलग अलग तरीके के. Now classes of determiners. There are 8 classes of determiners: articles, demonstratives, quantifiers, possessives, numbers, distributives, question words, and difference words. Now सबसे पहले हम articles पढ़ेंगे. Articles, from the grammatical point of view, articles are adjectives and all languages do not have articles. For example, हिंदी में कोई article नहीं होते and the form of articles does not change with the change of number and person of the noun. So there are 2 articles, definite article and indefinite article. Definite article is the and indefinite article is a or an. The indefinite article a or an signal that the reference is non-specific or general. जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पहली बार देखते हैं तो पहली बार जब हम उसको रेफ़र करते हैं या पहली बार हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो हम indefinite article का यूज़ करते हैं. Indefinite article is used before a singular countable noun. It is not used with uncountable nouns. The use of a or an depends on the spoken form of the word that follows and not the written form. जो जैसे हम बोलते हैं, अगर हमारा साउंड वॉवेल जैसा है तो साउंड अगर वॉवेल है तो हम एन यूज़ करेंगे और अगर साउंड कंसोनेंट जैसा है तो हम ए यूज़ करेंगे. और डेफिनेट आर्टिकल द दैट सिग्नल्स दैट रेफरेंस इज स्पेसिफिक. जब कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हमको बताना हो तब हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द. डेफिनेट आर्टिकल द हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? टू रिफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज़ इंडेफिनेट आर्टिकल एंड अगेन व्हेन वी आर यूजिंग और रेफरिंग टू द सेम थिंग वी यूज़ द. We use the with our we use the with unique things like sun, moon, almighty, earth, universe, equator, north pole, the east, means all the directions. We use the with adjectives when these are used as nouns. For example, the rich, the poor, the blind, the brave, and with proper nouns that refer to geographical areas
like seas, rivers, mountain ranges, group of islands, and plural names of countries like the United States of America. We use with the names of musical instruments like the tabla. We use the when a person is referred to by a title like the President of India, the Queen of England, with the plural of proper nouns of to denote the members of same family, the Jains, the Saxenas, the Sharmas, like this. We use the with superlative degrees like good, better, best. With best we always use the ordinals and unit adjectives. We use the with superlatives like best, largest, longest, and with ordinal numbers like the first, the second, the last part, like this. So here some more examples are: the visitors are coming, a box of chocolate was eaten by Lens. Now demonstratives. Demonstratives are those words which show who or what is being referred to. This, that, these, and those. These are the words which are demonstratives. This and that, this and these, they show nearness. In singular, this is used, and in plural, these is used. And to show distance, we use that and those. That is for singular and those for plural. See the examples. This pair of shoes is mine. I think that girl is their leader. Now, quantifiers. Quantifiers used with a noun to show the amount of something. So there are so many quantifiers here: few, much, most, some, any, more, little, many, a lot of, other, enough, such. So सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सम और एनी. तो सम एंड एनी आर यूज्ड to state the quantity or amount of something. With sum or any, the exact number, quantity, or amount is not stated. With these, the quantity remains indefinite. Sum and any are quantifiers. तो सम और एनी क्वांटिटी शो करते हैं, अमाउंट शो करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट क्वांटिटी शो नहीं करते. तो जो क्वांटिटी होती है वो इनडेफिनेट होती है. तो इसलिए इनको हम सम और एनी, जब हमको पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी या एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, तब हम सम या एनी का यूज़ करते हैं. एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं. जब हम कोई नेगेटिव का होता है या जब हम कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर नेगेटिव में होता है, तब भी हम एनी का यूज़ करते हैं. जैसे आई डू नॉट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट. डू यू हैव एनी आइसक्रीम लेफ्ट. और सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं. जैसे शी हैज़ सम वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स इन हर हाउस. देयर इज़ सम बटर ऑन द डाइनिंग टेबल. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हमको पॉजिटिव में मिलने वाला हो, तब भी हम सम का यूज़ करते हैं. कैन आई हैव सम टी. तो उसका आंसर अगर यस में मिलने वाला हो, तब हम उसको सम का यूज़ करते हैं. मच और मैनी. मच का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेड. ये मच और मैनी का यूज़ किया जाता है बहुत सारी क्वांटिटी बताने के लिए. तो मैनी का यूज़ हम काउंटेबल्स के साथ करते हैं और मच का यूज़ हम
अनकाउंटेबल्स के साथ करते हैं। मोर का मतलब और ज़्यादा, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा। इनफ मीन्स सफिशिएंट। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, जब बताना हो तब भी हम उसका यूज़ करते हैं। या फ्यू का यूज़ भी हम जब हम क्वांटिटी बताते हैं और उसके बारे में हमको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता है, तो थोड़ी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फ्यू। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म। मोस्ट स्टूडेंट टीचर्स आर स्टेइंग एट द लाइब्रेरी। अब पजेसिव्स है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, पजेशन बताता है। पजेशन मतलब जो चीज़ आपसे बिलोंग करती है, आपको बिलोंग करती है, वो कहलाता है पजेसिव। जैसे माय मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब लड़की के लिए, फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है हर। इट्स मतलब कोई भी वस्तु, और अवर मतलब हमारा, देयर मतलब उनका। तो ये पोजेशन शो करने के लिए कि कोई चीज़ आपको बिलोंग करती है, ये बताने के लिए पजेसिव्स का यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। माई ब्रदर जॉन विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुमारो, मतलब मेरा भाई। द ब्रदर वर्ड बिलोंग्स टू मी, माई ब्रदर जॉन। आई विल शो यू आर न्यू पेट। अवर मीन्स हमारा, तो यहाँ पर अवर जो है वो पजेसिव है। अब कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स यूज्ड इन सिंपल काउंटिंग एंड शो क्वांटिटी, जैसे 1 2 3 4 30 20 29 30, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं कार्डिनल्स। के एग्जाम्पल्स हैं। 2 dogs are barking outside. 30 Lucenian leaders attended the seminar. The next is ordinal numbers. Ordinal numbers used to show the position of someone or something in series, जैसे first, second, last, 50, 20th, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो होते हैं इनको ऑर्डिनल्स, ये पोजीशन शो करते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है एक सीरीज़ में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लूफी डिफीटेड द फर्स्ट कमांडर इन ब्लैकबियर्ड पायरेट्स। फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव अ वर्ड रिफरिंग सिंगली विदाउट एक्सेप्शन टू द मेंबर और ऑफ अ ग्रुप, मतलब कि बिना किसी एक्सेप्शन के बस वो एक वर्ड जो सिंगल बताता है, जैसे बोथ मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है कि 2 हैं, 4 हैं, आधे हैं, ये एक, हर व्यक्ति, सब, ये जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। बोथ मतलब 2 के बारे में, हाफ मतलब आधा, आइदर मतलब या जब 2 में चॉइस हो, या तो ये या ये। नाइदर मतलब नहीं, कि जब हम नेगेटिव सेंस में बोलते हैं ना तो ये ना ये, तो नेगेटिव सेंस में नाइदर होता है। ईच मतलब हर एक व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। एवरी मतलब ग्रुप में, हर ग्रुप में, उस ग्रुप को हम बोलते हैं लेकिन उसका यूज़ हम सिंगुलर के साथ ही करते हैं, जैसे एवरी वन इन द क्लास इज़ रेडी टू गो फॉर अ पिकनिक, और ईच स्टूडेंट इज़ गोइंग फॉर अ पिकनिक। ये दोनों में फ़र्क है कि हर एक बच्चा जा रहा है, और एवरी मतलब सारे बच्चे उसमें इंक्लूड हो गए, मतलब एक ग्रुप बन गया। ऑल मतलब सभी। एग्जाम्पल है एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक, मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग यूनिक है।
ऑल ग्रेड 7 स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस, मतलब ग्रेड 7 के सारे बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। क्वेश्चन वर्ड्स और रिलेटिव प्रोनाउंस। हुज मतलब किसका, विच मतलब किसका। हुज यूज़ किया जाता है लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए। विच यूज़ किया जाता है किसका, मतलब कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। वॉट मतलब क्या, वॉट एवर मतलब जो भी है। इसके एग्जाम्पल हैं किट इज़ द गाय हुज मदर इज़ अ फेमस सिंगर। तो किट की मदर कौन है, किट कौन है, जिसकी मदर फेमस सिंगर है। ही डज नॉट नो वॉट ही इज सेइंग, वो क्या कह रहा है वो उसको पता नहीं है। ये हो गए Thank you, children. I hope you have understood. For practice exercise, I'll send you a worksheet in which all these determiners you have to fill. So I will send a वर्कशीट, मैं एक वर्कशीट भेजूँगी जिसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी डिटर्मिनर्स को फिलअप करने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।